In this question, they have asked you to find the equivalent capacitance between P and Q. Given area of each plate is A and the separation between the plate is D. So you understand the separation between the plate is D means what? They have talked कि ये जो total distance है ना बच्चा तीनों का it will be equivalent to what D. It's not like कि एक plate का distance जो है वो क्या है D है. Okay. So let's go with this. I hope you know that key here the whole three plates are connected in series because they are put one on other. So जब तीन टायर्स में वन बाय वन रखा है so such connections are considered as what series connection. Next thing, uh, do you know the formula for capacitance? I hope you know. Capacitance is something A epsilon naught and then we have dielectric constant upon whatever जो उसका distance है thickness है. So here for each plate for the very first one I would say कि इसका capacitance is how much C1. Here capacitance is C2 and in this case capacitance is how much C3. Okay. So let's go one by one for capacitance 1. Okay. So again formula will remain same. Instead of this it will come k1 and I hope you know the distance over here for each plate the distance is d by 3 तो वो भी changes आएगा. Okay. So I'll put it over here. First के केस में तो dielectric constant 1 है तो ये कुछ इतना हो जाएगा but here the distance is given as d by 3 तो ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 times of a epsilon naught upon d. Is it clear? Next one. For capacitance 2 how much it is given? Again the formula remains same but this time dielectric constant 2 you need to consider. Okay. So I have a epsilon naught. इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 और मैं उसको आगे रखना प्रेफर करूंगी. डिस्टेंस अगेन इट इज d by 3 तो ऑलरेडी ऊपर 3 था नीचे से 3 जाएगा इट विल बिकम हाउ मच 9. So it is 9 a epsilon naught upon how much d. Okay. Next one. कैपेसिटेंस 3 की बात करते हैं. a epsilon naught k3 upon d. मूविंग फर्दर इस बार जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना है 6 है एंड देन वी हैव a epsilon naught एज इट इज. ये डिफरेंस कितना दिया है d by 3 सो ये ऊपर जाएगा 6 3 ज़ा 18 a epsilon naught और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू कितना है इट इज d. अंडरस्टूड. सो अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो वॉट एवर द कैपेसिटेंस ऑफ ईच ऑफ देम उसको ऐड करना पड़ेगा राइट. सो 1/C2 plus 1/C3. सो 1/C विल बी हाउ मच? ये हो जाएगा 3 a epsilon naught upon d. Right. Then for the second one it will become 9 a epsilon naught upon d. For the next one it will become 18 a epsilon naught upon d. अब d is the denominator का denominator तो न्यूमरेटर में जाएगा. So here it will become d upon 3 a epsilon naught plus d upon 9 a epsilon naught. Moving further it will be d upon 18 a epsilon naught. अब हमको एक फंडा पता है कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन होता तो हम इसको क्या कर सकते थे ऐड कर सकते थे. नहीं है कॉमन तो क्या करोगे कॉमन बनाओगे. कैसे करेंगे? द हाइएस्ट वैल्यू इज़ 18 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 18 हो जाएगा. ये 3 है सो 3 6 ज़ा हियर आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट 6 तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा राइट. फर्दर लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग. सो अब मेरा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है. ये 6d बाई हाउ मच 6 3 ज़ा 18 a एप्साइलॉन नॉट है. जो सेकंड वाला है वो 2d
अगेन इट इज 18a एप्सिलॉन नॉट प्लस जो थर्ड वाला है अगेन दिस इज डी 18a एप्सिलॉन नॉट. इज इट क्लियर? अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, राइट? हाउ मच इट इज 18a एप्सिलॉन नॉट. न्यूमरेटर ऐड होगा 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 9d. अंडरस्टूड? सो इट विल बिकम हाउ मच 9d. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन सी इज ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा 2 ज़ा. तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो कैपेसिटेंस है फर्स्ट केस में इट विल बी ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. अंडरस्टूड? So I hope the first part is clear to you all. Now let's move to the second part of this question. Now in this second part, this is the circuitry given. Acha, before proceeding further, let's be clear with the circuitry. So ये dielectric constant 1 है, dielectric constant 2 है, then we have the dielectric constant 3. अच्छा, इसके अलावा एरिया पे ध्यान दो, एरिया कितना है. तो एरिया P से Q के बीच में कैसे डिवाइडेड है? इक्वली, a/2 a/2. एंड फॉर दिस 3 and 4 डिस्टेंस इज डिवाइडेड एज d/2 d/2. बट ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है उसके केस में डिस्टेंस कितना है? d है. तो ये सारा क्लैरिटी लेकर ही हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स कम अप विद दिस सम. या सो इन दिस वन व्हाट इट इज गिवन, लाइक सबसे पहले बी क्लियर विद द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. ओके, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एरिया एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? दिस इज अ स्मॉल के ओनली. बी क्लियर. सो इट्स अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज स्मॉल के डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस d. ओके, तो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग सिंस इट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, इसको हम फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं, एंड दिस वन लेट्स टेक एज 3. तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड को देख रही हूँ, ओके, तो दे आर प्लेस्ड वन ऑन अदर. ओके, तो जब कोई वो एक के ऊपर एक रखा होता है तो वो कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज़ में कनेक्टेड होता है. ओके, सो एनीवेज पहले हम ये इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर हम सीरीज़ कैलकुलेशन करेंगे फॉर द सेकेंड एंड थर्ड. सो फॉर द सेकेंड कैपेसिटेंस कैन वी स्टेट दैट इट विल बी एरिया 2, क्योंकि इसमें एरिया भी चेंज हो रहा है. एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह पे तुम क्या रख दोगे? 2, एंड वॉट एवर द डिस्टेंस इट इज़ देयर फॉर दिस वन. सो एरिया मेरा क्या हो रहा है? a/2 हो रहा है. अंडरस्टैंडिंग? एप्सिलॉन नॉट ही है जो कि बचा हुआ है, बाकी सारा चेंज हो रहा है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? इट इज़ 3. ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? d/2. अभी कुछ चेंजेस होंगे तो ये तो ऊपर जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, बट वो एरिया के नीचे जो 2 है वो नीचे आएगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. आई होप यू आर क्लियर. मूविंग फर्दर यू कैन कैंसिल आउट, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, लाइक ये 1 ज़ा और ये मेरा कुछ 3 ज़ा. ओके, सो दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंस 2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस 3. इसके केस में क्या है? तो जो कैपेसिटेंस 3 है उसके केस में तुम क्या लिखोगे? एरिया 3 एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 अपॉन डिस्टेंस 3. ओके, सो एरिया अगेन इसके भी केस में क्या है? a/2 है. एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 है. मूविंग फर्दर डिस्टेंस कितना है मेरे पास? d/2 है. अंडरस्टूड? सो ये 6 2 ज़ा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, वो ऊपर जाएगा. 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 12 a एप्सिलॉन नॉट. और वो जो एरिया के नीचे 2 था ये नीचे आएगा और ये इसको क्या बना देगा? 2d. यू कैन डू दैट कैंसिलेशन 1 ज़ा एंड 6 ज़ा. अंडरस्टूड? सो ये मैंने कुछ कर लिया. मूविंग फर्दर वी विल बी स्टेटिंग कि कैपेसिटेंस 2 एंड कैपेसिटेंस 3 आर इन series connection. Okay, series connection. Understood? Now moving further, can I write this as 1 upon capacitance S upon 1 upon capacitance 2 to
1 अपॉन कैपेसिटेंस 3. ओके, मूविंग फर्दर जो कैपेसिटेंस इन सीरीज तुमको मिलेगा वो इस इन्हीं के वैल्यूज़ के थ्रू मिलेगा. सो व्हाट आई हैव 3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट और उसका डिनोमिनेटर कितना है डी है, प्लस अगेन वी हैव 1 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना है 6a एप्सिलॉन नॉट डी. अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो डी जाएगा ऊपर, क्या बचा 3a एप्सिलॉन नॉट और इसके केस में क्या हो जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट. राइट, मूविंग फर्दर डिनोमिनेटर को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कॉमन करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें. एज ऑफ नाउ ओके, इन दिस केस मुझे लाइक वॉट एवर वी नीड टू डू, चलो देखते डिनोमिनेटर कॉमन कैसे होगा. सो इसके केस में कैन वी से वी कैन मल्टीप्लाई बाय व्हाट 2, तो ये 6 था, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. सो 1 अपॉन कैपेसिटेंस सीरीज कैपेसिटेंस विल बी 2d अपॉन 6a एप्सिलॉन नॉट और ये मेरा कितना है d, फिर से ये भी कितना है 6a एप्सिलॉन नॉट. तो जो कैपेसिटेंस इन सीरीज़ है वो मेरा टोटल डिनोमिनेटर में 6a एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास कितना आ गया 3d आ गया. मूविंग फर्दर यू कैन कैंसिल आउट दिस. तो यहाँ से तुमको कैपेसिटेंस इन सीरीज़ की वैल्यू मिली है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल टिल नाउ. मूविंग फर्दर I'll just change the color so that you'll understand कि हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, दैट इज़ इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है. तो ये तो एक दूसरे से सीरीज़ में थे बट बगल वाले के साथ कैसे है, पैरेलल में है. ओके, सो यू कैन स्टेट दैट कैपेसिटेंस 1 एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज आर इन विच कनेक्शन. Here we can say total combination is in like will be given in what this series combination is in parallel. So capacitance 1 and capacitance S are in which parallel connection. Okay, so can we say तो total capacitance will be what, जो भी मेरा कैपेसिटेंस S आया है इसमें कितना ऐड कर देना है, कैपेसिटेंस 1 ऐड कर देना है. अब कैपेसिटेंस 1 को मैं इधर साइड में निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकालोगे. तो कैपेसिटेंस 1 हो गया, एरिया इसके केस में कितना है a/2 है. ओके, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा कितना 4 है और ये d कितना है, इट इज़ सिंपली d ओनली, पूरा है ना उसके केस में थिकनेस. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सी 1 सा और ये कितने सा 2 सा, तो मेरे पास कितना आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो इन दिस कंडीशन मेरे पास क्या है 2a एप्सिलॉन नॉट सीरीज़ कनेक्शन भी था प्लस ये वाला भी मुझे कितना मिला है 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. फर्दर व्हेन यू ऐड तो जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा कैन वी से इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. Understood. So I hope the solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.